this world, I am a doctor, some engineers, some mothers, everybody, but we are fulfilling our duty, remaining in Atma, and we are finishing our karma by remaining neutral. So, actually, to me, it is a very surprising thing that such a thing can happen, but it is happening, and it has happened. And that is why all these people who raise their hand, they are not only from Los Angeles. This gentleman is coming from New York and Dallas and everywhere. This is an gathering, and there are gatherings like this every city in United States, because we have got something unique which is अपना बुद्धि नहीं मानेगा ये. So ये निरुपम बोलता है ये सब possible है. रमीला उसको भी पुणे का मेरे डॉक्टर है, पुणे में को भी कुछ बोलने का है. I had the same I had the same question. How could I achieve this in 2 hours when you're supposed to? Because I have also gone to study GMG, everyone, a lot of the teachers. How could you achieve this when you're supposed to do this and do that and do that? How could you get all this in 2 hours? So when Dadaji was there and Nirma was there, so Dadaji said, people may be out in the street, and there's a belief that yeah, if I put someone in the lottery, that if I put $2 in the lottery today, I may one day win. So Dadaji was like, "Aap sabko lottery mil gayi." Sala world में से how many people win lotteries? You all got a lottery. So and that finally clicked that, oh okay, finally I got that lottery of reaching that pure self-stage and being in Shuddhatma stage. And I've been a physician, and I've been able to, since I met Dadaji, practice and be total internal calm, peace, no problems, because you're not the doer of anything. As we were young and understood and had our parents were very religious, and we went through a lot of studies, education on Gita Ji, on karma theory. We would go listen to everyone and feel really good, but then when we came home and someone said something, the anger came, the ego came. So we never left it, but after Dadaji's now, with this final understanding, you are still doing your work, but inside you're not the doer. You feel totally at internal peace. And so, it was like we got $1 billion lottery, which not many people get. And there was a wanting, there was always a wanting that we wanted this. So I guess when you're ready, and then you may be one of the persons who put the $2 lottery, you may win here, you don't even have to pay, just know it's coming. अगर 1 मिलियन आदमी लॉटरी का टिकट 1 मिलियन आदमी लॉटरी का टिकट खरीदता है, ये सच है कि एक आदमी जरूर विन करेगा, लेकिन लाखों आदमी नहीं टिकट खरीदे थे लेकिन उनको विन नहीं हुआ, एक आदमी जरूर हुआ। फिर भी हर वीक को सब लॉटरी लेते ही है लेकिन एक ही आदमी विन करता है। इसलिए आपके पास जो आएगा, जो जन्म जन्मांतर से साधना किया है, वही हम तो बता रहे कि जिसका ये स्टेज आ गया है उसको क्लिक होगा नहीं। वही क्लिक होगा। वही हम बता रहे हैं ना कि सब नहीं आ पा सकते हैं, आएंगे तो भी सूट नहीं बैठे। वही बात बुद्ध ने भी कहा था कि लोगों ने पूछा आपको क्या मिला, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पहले से था वो तो था ही, बस मैं जान गया क्या था, बस उनको तो वो मिला ही हुआ था। नहीं, वो उसका मतलब कहना मानते हैं कि आपके पास जो चीज आपका आत्मा है ना, आपके पास है ही, पहले से ही था, वो आपने उसको जाना नहीं था, जाना उसको कोई ज्ञान देते हैं। अब देखिए भारत में ही जानने की बात है। देखिए स्वामी जी, आप अपना टाइम नहीं जाना, ये चीज जिसको अंदर से होता है, श्रद्धा आती है, अंदर से लगता है कि नहीं मेरे लिए काम का है, वो है। आपको लगता है कि मेरी साधना करके प्राप्त करना है तो वो है विद्या। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारा कोई दुकान नहीं है, हम किसी को कहते नहीं कि हम हमारे पास आओ, बैठो, ले जाओ, नहीं, आपकी चॉइस है। दिस इज द थिंग, दिस आर द कार्ड्स ओपन। जिसको इसमें इंटरेस्ट है देखा, जिसको नहीं लगता है तो नो प्रॉब्लम। Then आपके व्यू पॉइंट्स है, you stuck to that. We don't say that you are wrong.
ऐसा वो भी एक तो पाथ है कि साधना करते 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 आगे बढ़ना, और ये भी एक बात है कि ये एलिवेटर में जाना। अभी जिसको अपनी अपनी खुद की चॉइस है, जिस तरह से जिसको जाना है, दे आर फ्री टू गो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, जो कुछ आपने बताया सब वेरी साइंटिफिक, वेरी रैशनल। लेकिन एक ही चीज़ मेरे को ये जरा सा डाउट हुआ कि 2 घंटे में घटना सबके लिए नहीं घट सकती है। बस जो साधना किए हैं, जो क्लिक कर जाएंगे, क्लिक कर जाएंगे। तो ठीक है, आपको जितनी बात की अच्छी लगी वो अपनाओ, नहीं अच्छी लगी मैंने तो कब, जब आपका अंदर से आएगा कि ये भी अच्छा है, अपना जो जैसा है, तो आप जिसको लगेगा कि ये भी मुझे करना है तो वो कर सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल बात है ना, हर एक के इंडिविजुअल है ना, उसमें तो किसी का नहीं है। एक सीड अगर वृक्ष बन गया तो संभावना तो है कि सभी वृक्ष बन सकते हैं। What I say to everybody who is here, at least try. There is no charge in trying, and come with an open mind. And you may be one of those people who are buying lotteries for the millions of life, and this time you are going to get it. I was one of those. So why don't you try? Maybe you have already played the lottery for millions of years. And one more thing, we'll be short. That'll be last question. Dhirubhai has to go. The next program is at 4 o'clock, and that is on very important, good subject, harmony in marriage. So, sab log aa jana and tell your friends who are not here. It will be a very, very useful, applicable. This Atmagnan and theory of karma is good. It's very useful, but that's daily problems, and daily solutions. So, at 4 o'clock, please come, and I'll just get that last question there. Huh? I don't have a question. I just want to share my experience. I was not, I was told by somebody to just come to this place, and I had no knowledge, no understanding, nothing about it, and I just came to the Gnan. Lots of good stuff in my past life, and this must be the result of it. And since then, since '93, I got this Gnan, and I'm continuously following it. It is helping me in my daily life as well as my future life, which is I'm going to come into, and I definitely know that this is leading to moksha. आज का हमारा पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, मैरिज हार्मनी कहते हैं ना। मैरिज तो होता है, लेकिन हार्मनी कितनी होती है वो जरा तलाश करना है। ये एक ऐसा नाता है सबसे नजदीक का है, क्लोजेस्ट वन, बहुत ही नजदीक का है। सारी जिंदगी भर हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ के वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टाइल में, लेकिन हमारे इंडियन स्टाइल में तो सारी जिंदगी भर का नाता होता है। पति पत्नी का दिव्य व्यवहार के बारे में आज बातें करने की है। यह जो इतना पति पत्नी का जो संबंध है इतना नजदीक का है, हमारे भारतवर्ष में तो सारी जिंदगी भर का होता है। या वेस्टर्न वर्ल्ड के जैसा नहीं होता है, लेकिन सारी जिंदगी भर के लिए। तो ये जो संबंध है वो एक दूसरे के प्रति हार्मनी, प्रेम, आदर, रिस्पेक्ट अगर नहीं रहा तो इसमें कुछ हार्मनी नहीं रहती, प्रेम भाव नहीं रहता है। तो जीने के लिए जी तो जाते हैं, इंडियन कल्चर है इसलिए बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता को दुख न हो, इसके लिए दोनों जी तो जाते हैं साथ में, लेकिन
अंदर प्रेम के बगैर दिमाग मन में एक दूसरे के लिए नेगेटिव रहता है, बात बात में एक दूसरे के दोष दिखते हैं, दोनों के विचार भिन्न ही रहते हैं, कुछ कोई बात में मेल नहीं पड़ता है, फिर भी हमारे संस्कार ऐसे हैं कि एक दूसरे के लिए जी लेते हैं। एक दूसरे को एडजस्ट करने का है, पति पत्नी का व्यवहार यानी लाइफ टाइम एडजस्टमेंट्स, नथिंग बट एडजस्टमेंट्स। समझदारी से एडजस्टमेंट लेने का है, अहंकार से नहीं। कभी एडजस्टमेंट तो लेते हैं लेकिन अहंकार से लेते हैं, ऐसा रहता है कि चलो जाने दो, लेट दो करो, घर में क्लेश नहीं चाहिए, कटकट नहीं चाहिए, ऐसा करके लेट गो करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अंदर हमको ऐसा कोई इल फीलिंग ना रहे, भाव भी साफ रहे और एडजस्टमेंट ले, एक दूसरे की प्रकृति को पहचान ले। बहुत जरूरी है एक दूसरे को पहचानने के। आजकल के लड़के तो कहते हैं, अगर माता पिता को अच्छी लड़की बताए तो बच्चे कहते हैं नहीं हम ऐसे नहीं शादी करेंगे, एक दूसरे को पहचाने बगैर कैसे शादी करेंगे, पहचानना है। अरे कितना भी पहचान करो लेकिन कितना पहचान सकोगे, सारी जिंदगी चली जाएगी तो भी पहचान नहीं पाओगे। हमने बूढ़े बुढ़िया के बहुत डायलॉग सुने, उम्र पूरी होने आई तो भी कहते हैं, बूढ़ा कहता है तू मुझे समझती ही नहीं है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो बूढ़ी कहती है आप मुझे सारी जिंदगी भर समझ ही नहीं पाए। अभी इतनी सारी जिंदगी साथ में रहने के बाद भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो शादी के पहले कितना समझ पाएंगे। और कल हमारे शिरीष भैया के साथ बात होने लगी, हमने पूछा उनको कि आप रमीला को कितना पहचान पाए, तो कल मैं तो पूरा पहचान लूँ। क्या बात करते हो, पकते हो मैं तो पूरा समझ लिया। तो नहीं, फिर बोलने लगी 75% मैं उसको समझ ले रहा। और दादाजी ने अपने व्यवहार के बारे में, उनके पत्नी थे हीराबा, जिंदगी में कभी उनका मतभेद नहीं हुआ था, एक ही बार हुआ था, वो भी बताते हैं वो कैसा हुआ था। लेकिन ऐसी जिंदगी उनकी पति पत्नी की गई थी तो भी दादाजी कहते थे कि 60 साल बीत गए फिर भी मैं मेरी पत्नी को पहचान नहीं सका, और ये शिरीष भाई पहचान पा गए। तो आसान नहीं है पहचानना। प्रकृति को पहचानो तो प्रकृति से पार ही कर सकते हो। कोई मतभेद नहीं हो सकता है, लेकिन मतभेद तो कितनी बार विचार भेद तक चल सकता है, डिफरेंस ऑफ थॉट्स हो सकते हैं, ये कलयुग में होते हैं, सतयुग में नहीं होते, लेकिन मतभेद तक नहीं जाना चाहिए। मत यानी ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन पे अड़ के बैठ गए तो उसको मतभेद कहते हैं। फिर मतभेद से आगे बढ़ गए तो मनभेद हो जाते हैं। मनभेद, विचार भेद तो सॉल्व हो जाता है थोड़ी देर में, मतभेद सॉल्व जल्दी नहीं होता है, सारी रात तो बिगाड़ता है। और मनभेद हो गया फिर डिवोर्स होता है। मन टूट गया सो टूट गया, फिर कहते हैं ना कांच और मन दोनों टूटे सो शीशा कहते हैं, शीशा हुआ, दिल टूटा तो टूटा, फिर जुड़ नहीं सकता है। वैसा मन भी टूटा तो टूटा, फिर जुड़ नहीं सकता है कितना भी करो तो ये वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मत पे मत अड़ कर बैठ जाओ, मत पे अड़ कर बैठ गए तो फिर भेद होने वाला ही है। डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ थॉट्स, व्यू पॉइंट्स,
फिर ओपिनियन तक चले गए तो फिर क्लेश शुरू होता है, क्लैशिश होते हैं, झगड़े होते हैं एक दूसरे का। अपने हिंदुस्तान में कितना अच्छा है, सब एक दूसरे के सब डिपार्टमेंट अलग है, अच्छी अच्छी तरह से अपना अपना काम करते हैं अलग अलग, और बहुत अच्छा कर चलता है। तो एक दूसरे का पॉजिटिव प्लस देखो क्या क्या है, कितना पॉजिटिव हमको उनका काम, अच्छे अच्छे उनकी अच्छाइयाँ देखें तो फिर नेगेटिव बुराइयाँ सामने नहीं आएगी। हस्बैंड है तो उसने अपनी वाइफ की अच्छाइयाँ देखो, किस तरह से देखना। तो देखो हम शादी करके आए, बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट हमको झाड़ू वाली मिली, वैक्यूम करके देती है, फिर लॉन्ड्री करके देती है, धोबन मिली फ्री ऑफ कॉस्ट, पगार थोड़ी देता है। खाना पका के देती है, अपने इंडियन लेडी तो सब पका के देती है। बहुत तो हस्बैंड सब्जी काट के देता है, यहाँ पर इंडिया में तो वो भी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट कुक मिल गई आपको, कुछ पगार देते? कोई पगार नहीं। देखो बहना नहीं बोल रही है, कोई पगार नहीं देता है। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सब नर्सरी करती है, बीमार वगैरह रहे तो रात दिन जाग के भी करती है। अपने बच्चों को, दोनों के बच्चे रहते हैं लेकिन सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके कितना अच्छा तरह से पालती है, सब बड़ा करती है। इतना सारा होने के बाद जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उसके पीछे बाप का नाम देती है, अपना नाम नहीं देती है। कोई देता है रितेश, रमीला, पटेल, उसको हस्बैंड कर नहीं, वहाँ भी वो सेक्रीफाइस कर देती है, नाम भी अपना नहीं रखती है। और ये कंट्री में तो कमा भी लाती है, वो भी काम करती है, वो एक्स्ट्रा आइटम है यहाँ पर। तो कितना सारा अपने को फायदा होता है। तो कभी इतना सारा प्लस देखो तो फिर कभी कभी अगर वो जब रूठ गई, मुझे आज सोने का सेट नहीं ला के दिया, नहीं ये नहीं ला के दिया, तो कभी कभी वो रूठ गई तो जरा संभाल लेना उसको, ये सब प्लस पॉइंट याद करके, नहीं तो बड़ा तूफान हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। जब कभी को कुछ नेगेटिव दिखा तो ये प्लस देख लेना, चलो इतना सारा तो है प्लस में, चलाओ $5,000 दिए ना महीने की पगार, तो भी कोई इतना सिंसियरली फेथफुली काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो मेड भी नहीं मिलेगी और कुक भी नहीं मिलेगा। वो खुद का अपना करके करती है, सब कुछ एक हो जाती है। तो ये सब प्लस देखना, तो कहाँ दिक्कत आती है। कभी कभी अपना मनमानी करना चाहती है तो करने दो, सिर्फ भाइयों के लिए ही है ऐसा कुछ नहीं है। भाई लोग बेचारे तकलीफ में आ गए, हमारा ही गुनाह है ऐसा थोड़ी है। तो बहनों के लिए भी तो है, उन्होंने भी तो एडजस्टमेंट लेने का है, बहनों ने देखने का कि हमें किस तरह से हमारे हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट लेना है, कौन से प्लस पॉइंट्स देखना, वो भी इतना ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, जब हम लड़का पसंद करने गए, हमने खुद पसंद किया, तो उसमें हमने सब पॉइंट्स देख लिए। सबसे हर कोई लड़की अपने लिए जो लड़का पसंद करती है ना, तो अपने से सुपीरियर ही पसंद करती है। हर बारे में सुपीरियर ही ढूंढती है। अब ख्याल करो, याद करो, अपने से सुपीरियर ढूंढती है ना। पहले से सबसे पहला हस्बैंड कैसा होना चाहिए, अपने से थोड़ा उम्र में बड़ा चाहिए। बड़ा लाती हो ना, आरती बड़ा लाई थी कि छोटा लाई थी? बड़ा लाई, अपनी उम्र में उसने अपने से बड़ा लाई।
बड़ा सुपीरियर, इसमें भी उम्र में भी अपने से सुपीरियर मांगा। नहीं तो छोटा ले आना था ना कमर पे रख के, तो तू उठ कहती थी तो उठता था, और बैठ कहती थी तो बैठ जाता था। नहीं वो नहीं चला, बड़ा होना है, बड़ा लेके आई। बाद में सबके पास और क्या तो नहीं, और भी पढ़ाई लिखाई में भी मेरे से सुपीरियर होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उम्र में भी मेरे से बुजुर्ग होना, पढ़ाई में भी मेरे से ज़्यादा होना। मेरे से कम पढ़ाई वाला नहीं चलता था, सिलेक्शन में नहीं चला ना, 2-4 रिजेक्ट कर दिए। तो इतना सारा करने के बाद अच्छा पढ़ा, अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा मिला, तो हमारी सिलेक्शन का है, इसमें भी सुपीरियर लिखा रखा। फिर हमारे से स्मार्ट होना चाहिए, ज़्यादा स्मार्ट लेके आए। तेरे से ज़्यादा स्मार्ट है ना? स्मार्ट लेके ज़्यादा सब सिलेक्शन में हमारे सब बारे में हमसे सुपीरियर ही हमने मांगा और ले आए वैसा देख के। फिर हमारे से ज़्यादा कमाने वाला चाहिए, वैसा मांगा ना, वैसा ले आई। नहीं तो ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने ज़्यादा कमाए वैसे रहना था, इसको घर पे रखना था, बावर्ची होता था तो क्या हरकत थी, कुछ नहीं चला वैसा सिलेक्शन में। वो नहीं, ज़्यादा कमाने वाला, सब कुछ हमारे से सुपीरियर, अच्छे खानदान वाला, ऐसे वाला, हमारे से सब में सुपीरियर ही ढूंढा। फिर शादी करके लेके आने के बाद में भी सुपीरियर रखो ना। फिर तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद, शादी के बाद, तुमको कुछ समझता नहीं, तुम बैठ जाओ। अरे सुपीरियर बोल के तो ले आई थी, बहुत समझता है करके तो ले आई थी, और अभी कहती तुमको कुछ समझता नहीं है, बहुत समझदार करके तो ले आई थी, अब कहती नहीं समझते, तुमको कुछ नहीं समझता। बच्चों के बारे में दिमाग में हमारे तरफ से आप सब मर्द लोगों को कान में बात कह दे रहे हैं हम, कान खोल के सुन ले, और बहनों कान बंद कर ले। हर कोई स्त्री पत्नी मन में तो ऐसा ही समझती है कि मेरे हस्बैंड से मैं ज़्यादा समझदार हूँ, उसको कुछ नहीं समझता है, तो भोला है, भोला। बोलोगे ना, अच्छा है, भोला लगता है ना? हाँ तो तुम कितनी पक्की हो कि हस्बैंड भोला लगता है। और ये समझ के फिरता है कि मैं भी बहुत हूँ, मुझे होशियार है, मेरे से अच्छा कोई नहीं, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसा ही समझ के रहती, बाहर कुछ बोलती नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा ही रखती है। ये भूले हैं, इनको कुछ नहीं समझते, उनको कोई भी उल्लू बना जाता है, मुझे कोई नहीं बना सकता। हर कोई समझता है, भी से बोले रहते हैं, इसलिए इनको शंकर के अवतार कहते हैं। भोलेनाथ। लेकिन दूसरी ओर क्रोधी भी उतने भोले के जितने क्रोधी होते हैं। मैन का नेचर है, तो प्रकृति जो है, जो हमारा फिजिकल बॉडी बना हुआ है, आत्मा एक चीज है, और जो मन वचन काया जो फिजिकल अनात्मा विभाग है, वो जो फिजिकल बॉडी है वो मेड अप ऑफ एटम्स। तो स्त्री और पुरुष दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोर्शन ऑफ एटम्स अलग अलग है। मेन कौन से है? क्रोध मान माया लोभ, ये चार है, क्रोध मान माया लोभ। इसमें मैन में क्रोध और मान ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली रहता है, और ह्यूमन में माया और लोभ ज़्यादा रहता है, मोह कपट लोभ, ये सब इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें क्रोध और मान बहुत मानी रहते हैं, अहंकारी रहते हैं। जरा कुछ भी बात है तुरंत क्रोधित हो जाते हैं।
कि प्रकृति ही ऐसी है, दोनों की प्रकृति है, तो दोनों एक दूसरे की प्रकृति को पहचानो, स्टडी करो और उसमें एडजस्टमेंट लो कि इसकी प्रकृति है, वो प्रकृति वो ऐसा नहीं है, वो तो आत्मा ही है, परमात्मा ही है, लेकिन उसकी प्रकृति ऐसी है तो वो प्रकृति तो वैसा ही कार्य करेगी। तो वो प्रकृति पहचानो और उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं आता है, ये प्रकृति कराती है। हमें उस प्रकृति को समझ लेना चाहिए और अंदर से उसके लिए एडजस्टमेंट ले लेना चाहिए, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम भी नहीं होगा और शांति से जीवन जाएगा। एक दूसरे की प्रकृति को पहचान के अगर एडजस्टमेंट लिए तो ये स्टडी करते जाने का जरूरत है दोनों की प्रकृति को, तो प्रॉब्लम नहीं आता है क्या। ये तो क्या होता है सारे दिन वाइफ रहती है तो उसके दिमाग में यही चलता है सारा दिन, कुछ भी घर में आके आई ना वहाँ से उसके दिमाग, ऐसा करूँगी तो हस्बैंड को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा करूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करूँगी तो अभी चिल्लाते होते, दिमाग में यही चलते रहता है। तो फिर वहाँ हार्मोनी कहाँ रही, डर ही रहता है, डर डर डर। इसे डर रखने की क्या जरूरत है, प्रेम से रहो ना, फिर प्रेम नहीं रहेगा, नो लव, फिर भय, फिर सारा दिन उसका दिमाग इसमें ही चलता है कैसा एक्ट करूँ जिससे उसको अच्छा लगे, उसको गुस्सा ना आए, उसको अपमान जैसा ना लगे। लेकिन ऐसा कितना भी करने जाए, यहाँ से संभालने जाओ तो वहाँ से टूट जाएगा, वहाँ से संभालने जाए तो वहाँ से टूट जाएगा, कहीं ना कहीं से तो लीक हो जाएगा। पहले ये भय निकाल दो तो प्रेम तो कुछ कहेगा, प्रेम से करोगे तो कुछ इसका रिजल्ट आएगा। सेम भी हस्बैंड वाइफ के लिए भी, वो जो ओपिनियंस है ना, अभिप्राय इतने गाढ़ हो जाते हैं कि दो एक दूसरे के लिए वो अभिप्राय के मुताबिक ही उसके साथ व्यवहार होता है। ऐसा वो करूँगी तो वो ऐसा उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये ओपिनियन रहता है तो फिर वो अंदर भय 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 लगता है। जो भी कुछ करो ओपिनियन निकाल दो, फिर वो मोमेंट में जो भी कुछ हुआ वहाँ का वहाँ निपट दो, फिर उसका नो प्रिंट आफ्टर प्रिंट, नो आफ्टर इफेक्ट्स क्लीन कर डालो, फिर नेक्स्ट इंसिडेंट्स में अलग अलग से आप फ्रेश का फ्रेश हो जाओ आपका व्यवहार, तो ही हार्मनी रहेगी, तो हार्मनी नहीं रहेगी, वो भय रहेगा। ओपिनियन तो पहले आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो उसके मुताबिक आपका व्यवहार होते जाएगा, सहज व्यवहार नहीं होगा, मुक्तता नहीं लगेगी। अपने घर में आके ही अगर आप मुक्तता नहीं अनुभव किए तो फिर कहाँ बाहर तो मुक्तता नहीं अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ का व्यवहार है हमें बहुत संभाल के करना पड़ता है क्योंकि यहाँ तो पराये लोग होते हैं, घर में तो अपने लगते हैं, तो वहाँ अच्छी तरह से जो अगर प्रेम से न रह सके तो घर में भी टेंशन, तो ये टेंशन रिलीज कहाँ करोगे, तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये हमारा ही नुकसान हो रहा है, फिर उसकी इफेक्ट बच्चों पे पड़ती है। घर में टेंस एटमॉस्फेयर देख के फिर बच्चे भी पढ़ाई में डल होते जाते हैं, डिप्रेस होते जाते हैं, घर का एटमॉस्फेयर उनको पसंद नहीं पड़ता है, तो हमेशा वो बाहर ही घूमना पसंद करते हैं, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चक्कर चालू हो जाता है। तो ये हमारा घर का वातावरण इतना अच्छा प्रेम में रखो कि बच्चों को बाहर किसी फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं, उनको अपने मम्मी और डैड के अलावा और किसी की कंपनी अच्छी ही ना लगे। इतना अटैचमेंट, इतना प्रेम वाला अटैच, राग द्वेष वाला नहीं, प्रेम वाला अटैचमेंट होना चाहिए। तो ये है हमारे हस्बैंड वाइफ की फर्क। बच्चों के सामने कभी एक दूसरे का बुरा मत बोलो, एक दूसरे की गलतियाँ मत निकालो। बच्चे सब नोट डाउन करते हैं, और इतना ही नहीं, उनके दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड हो जाता है, और ये फीड हुआ उसको नहीं पता चलता, लेकिन वो फिर जब बड़े होते हैं तब ये सब मम के लिए या डैड के लिए सब जो नेगेटिव है, बुराइयाँ अंदर फीड हो गई है, वो फिर बाहर निकलती है। और वो बाहर निकलने के लिए
जब उसकी वाइफ आती है ना, गुरु आते हैं ना, तो वो है तो क्लिक कर देती है, तो सब परिवार को निकलने लगता है। डैड ऐसी है, मम ऐसी है, हाँ। तो ये सब हम ही क्रिएट करते हैं उनके दिमाग में। तो पहला कभी फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के बीच में कभी झगड़ा मत करो, बड़े बड़े से जोरों से ऊंचे आवाज़ से बोलना, तू ऐसी, तेरे बाप ने ऐसा सिखाया, तेरी माँ। अरे हाँ, सब पुरुष लोगों को एक बहुत ही कीमती एडवाइस हमारे ओर से ले लो, कभी अपनी पत्नी को उसके मायके के बारे में कभी नेगेटिव मत बोलो, बहुत छेड़ जाएगी वो, रौद्र रूप धारण कर लेगी, तांडव मचा देगी, काली माता। इतना उसको अटैचमेंट, और सारी जिंदगी अब ससुराल में रहती है, अपना घर बसाती है, सब कुछ होती है, लेकिन मैके का अटैचमेंट उसको कभी जाता नहीं है, उतना का उतना ही रहता है। जहाँ कुछ भी गलती से कुछ मैके का बोल दिया, तेरे बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, तेरे भाई नहीं ऐसा है, तो फिनिश, आपके 12 बज जाएंगे। तो अच्छा ही बोलो, बोलना है तो अच्छा ही बोलो, तो वो भी खुश, हमको भी अच्छा खाना खिला के खिलाएंगे। नहीं तो उस दिन आपको खाना भी नहीं मिलेगा और रात को सोना भी हराम हो जाएगा। जिस दिन झगड़ा हो गया मायके के बारे में कि कोई भी बारे में, तो रात की हालत देखो, याद करो अपनी। रोज से 63 का आंकड़ा रहता है, तो उस दिन 36 का आंकड़ा हो जाएगा, एक का मुँह इधर, दूसरे का मुँह उधर, सारी रात। फिर वो रोती रहेगी, आप तो नहीं खर्राटे बुला लेंगे, लेकिन वो रोएगी। फिर वो भी कुछ कम नहीं है, वो समझती है कि नहीं मैं रो रही हूँ और ये खर्राटे बुला रहा है। वो भी वो ट्रिक करती है, जोर जोर से और जोर जोर से रोती है उसको उठाने के लिए। वो उठ जाता है तो उसको लगता है बेचारी कितनी दुखी है। फिर कहती है रहने दे, तू जो कहती सब मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी, सो जा शांति से। ये सब चलता ही रहता है, फिर इसमें ही हम डूबे हुए रहते हैं। रूठ जाना, मनाना, रूठना, मनाना, इसमें ही चले। कई लोग कहते हैं कि बस जब रूठते हैं तो मज़ा आती है। अरे क्या मज़ा आती है, मालूम पड़ेगा। वो रूठती है, बोलती नहीं है, रो के इतना मुँह सुझा के फिरती है, तो क्या मज़ा आती है। सब अपने दिल पे हाथ रख के देखो, याद करो दुख कितना लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और आप तो क्या, वो जब सत्यभामा रुक जाती थी ना, कृष्ण भगवान को भी बड़े बुरे हाल हो जाते थे। बात में रुक जाती थी वो। चलते आया है पहले से। ये हमें नहीं चाहिए। प्रेम से अच्छी तरह से हमारे बच्चे में भी वही संस्कार आएंगे, वो भी यही सीखेंगे कि नहीं, जब शादी करेंगे तो हम भी हमारी पत्नी के साथ कभी ऐसे जोर जोर से ना चिल्ला के बातें नहीं करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। अगर कुछ एक दूसरे के लिए कुछ डिफरेंस हो गया तो शांति से बाजू में अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके एक दूसरे को मसलत करो, सलाह सूचन लो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के बारे में पति पत्नी के बीच में बहुत क्लेशिश होते हैं। एक कहती है ऐसा बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए, बाप कहता है वैसा करना चाहिए, दोनों तो झगड़ते हो, बच्चे दुर्बला करते हैं, दोनों का फ़ायदा उठाते, दोनों से जो फायदा हो जहाँ मिलता है वहाँ से। तो ये सब जितनी समझदारी से जाएंगे ना, बीच में ईगो मत लाओ। ईगो क्या कहता है, मैं इनको लगता है कि मैं मर्द हूँ, मैं पति हूँ, मेरा ऐसा तो होना ही चाहिए, इतना मेरा तो घर में मेरा चलन होना चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा करने होना चाहिए, सबने करना चाहिए। तो कहाँ
तक वो थोड़े दिन तक नहीं होगी, वहाँ तक चलने देगी। कुछ साल के बाद फिर उसका भी वो भी सप्रेस करके कहाँ तक सप्रेस करेगी, फिर उसका भी आउट हो जाएगा, वो भी नहीं सुनेगी। फिर आमने सामने आ जाते, वहाँ तक की नौबत लाने नहीं देना। मर्द है तो दादाजी हमेशा कहते थे मर्द घर का बड़ा है, सुपीरियर पर्सन है, सब में उसका ही इज हेड ऑफ द फैमिली, वाइफ बच्चे सबके लिए इज हेड ऑफ द फैमिली। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किस तरह से टैकल करना। वाइफ छोटी है, बच्चे छोटे हैं, सब छोटे, ही इज एल्डेस्ट वन, वाइज वन, सब में सुपीरियर लेके करके तो ले आई थी, तो सुपीरियर तो उसमें भी सुपीरियर तरह से रहकर संभालना चाहिए। कभी कभी कुछ कहाँ भी प्रॉब्लम हो गया तो टैकल करके उसमें से बाहर निकल जाना, बहुत शांति से अंदर ठंडे कलेजे से करना चाहिए। लेकिन जो ईगो रहता है ना, इसमें स्पेशली हमारे इंडियन हस्बैंड में बहुत ईगो रहता है, मैं हस्बैंड हूँ, मैं पति हूँ और वाइफ मेरे से डाउन है। डाउन नहीं है, दोनों शरीर के इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी जहाँ ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इक्वालिटी कहते हैं वैसा इक्वालिटी हमारी इंडियंस की नहीं है, अलग प्रकार की इक्वालिटी है। यहाँ इक्वालिटी यानी क्या मानते, हर एक फील्ड में इक्वल। हमारे वहाँ क्या है, अपने अपने दो डिपार्टमेंट्स अलग है, होम डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट, घर का और बाहर का। तो मैन है तो फॉरेन डिपार्टमेंट का हेड है, वीमेन है तो होम डिपार्टमेंट की हेड है। तो होम डिपार्टमेंट का फाइनल और अथॉरिटी वीमेन की है, स्त्री की है। और फॉरेन डिपार्टमेंट की, फॉरेन डिपार्टमेंट क्या आता है, कमाना धमाना, पैसे का मैनेज करना, प्रॉपर्टी का मैनेज करना, ये करना, और किसका लेना देना, किसको क्या करना, नहीं देना, ये सब उसका डिपार्टमेंट है। पत्नी का डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट यानी उसमें घर का सब कुछ संभालना, खाना बनाना, सब राशन विशन ये सब संभालना, बच्चों को संस्कार देना, उनको खिलाना पिलाना, उनका ध्यान रखना, फिर अपने इन लॉज रहे तो उनका संभालना, सेवा करना, तो ये सब उसका डिपार्टमेंट है। उसमें उसकी अथॉरिटी, कुछ किसके रिश्ते में किसी की शादी वगैरह हो तो किस शादी में किसको क्या देना है, क्या लेना है, ये सब वो डिपार्टमेंट उसका है। दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट में फाइनल अथॉरिटी है। तो इस दूसरे के डिपार्टमेंट में दखलगिरी ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसकी वो इक्वालिटी वहाँ ही रहती है, वहाँ ही तभी इक्वालिटी बैलेंस में रह सकती है। नहीं तो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में अगर दखलगिरी आई तो मामला भी चल जाएगा। और वो पूछेगी का इतने पैसे कहाँ गए, इतने थे वो कहाँ गए, इतने धंधे में लॉस कैसे गया, आपको धंधा करना नहीं आता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, वैसा करते तो बुरा, तो और उसका दिमाग खराब होता है। तो कहना तू कर, मैं अभी घर पे खाना पकाऊंगा, तू धंधा करने जा, तो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये कंट्री में जॉब वाला मामला है, दोनों जॉब करते हैं, थोड़ा सा इंडिया जैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है जॉब वाला मामला। लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जो अगर हार्मनी रही तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट से एक दूसरे का डिपार्टमेंट अपने अपनी जगह पे रखो। हाँ, कुछ अगर कुछ मेजर बात है तो एक दूसरे को, अगर दोनों को हक है, राइट है कि आप अपने डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो दूसरे की एडवाइस ले, हेल्प ले, सब कुछ करें तो ज़रूर है, और प्रेम से हेल्प करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा तूने क्यों किया, आज खाना ये क्यों बनाया, आज इतना जल्दी राशन क्यों ख़त्म हो गया, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, तो उसके डिपार्टमेंट दखल करने की क्या ज़रूरत है। जो आएगा भाव उसको सॉल्व करो, तो ही प्रेम रहेगा, हार्मनी रहेगी। नहीं तो बात में डिफरेंसेस होते जाएंगे, इतना ही नहीं क्लेश हो जाएगा, क्लेश होगा, इतना ही नहीं बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। ये सब हमें नहीं चाहिए। कितने
याद करो कितनी खुशी खुशी से शादी करने गए थे, कितने अरमान से लेके आए, अच्छा घर बसाएंगे, नया जीवन करेंगे, ये वो कितना सारा था। इसके भले एक क्लेश आता है तो सब अरमान टूट जाते हैं। ये जीवन का क्या मतलब? ये समझ के चलना है कि जीवन इसके लिए नहीं है। कहा है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हमारे वेदों ने, उपनिषदों में बताया है कि इसके लिए मनुष्य का जीवन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के लिए पत्नी भी साथ, पत्नी का भी उतना ही साथ है, इसलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। यहाँ तो वाइफ कहते हैं, लेकिन अपने वहाँ धर्म पत्नी कहते हैं। क्यों? तो घर में नहीं, लेकिन धर्म में भी उसका उतना ही हिस्सा है, मोक्ष तक का उसका साथ है। इसलिए इसका यहाँ तक अर्धांगिनी कहते हैं, हाफ हाफ 50-50। यहाँ अर्धांगिनी है ना, हाफ हाफ 50-50, उसकी जायदाद के लिए ही मानी जाती है, हाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत डाउन चीज़ है, वो है, कभी उसको विचार भी नहीं आता कि मेरा कुछ अलग है, उसका कुछ अलग है, मेरा इतना है, उसका उतना है। और हस्बैंड को भी ऐसा नहीं रहता है, उसका भी ओपन कार्ड रहता है। जो भी कुछ करता है अपनी वाइफ को पूछता है कि क्या अच्छा है, मैं जो कर रहा हूँ बराबर है, तो कहते हैं बराबर, आप जो करते हैं बराबर है। वाइफ भी जो कुछ करती है बराबर है, तो कुछ तकलीफ नहीं होती है। दादाजी का जीवन, उनकी भी शादी हो गई थी। वो उस जमाने में 15 साल 16 साल में शादी कर देते थे, तो बहुत बचपन में हो गई थी। अध्यात्म का जीवन तो उनका 22 साल के बाद शुरू हुआ, लेकिन पहले उनका जब ना समझते तब झगड़े होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जैसे अध्यात्म की ओर हुए, फिर समझ के उन्होंने सब काम करते करते आफ्टर एज ऑफ 30 नॉट अ सिंगल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कभी मतभेद नहीं हुआ अपनी पत्नी के साथ। एक बार कहते थे वो कि एक बार हमारा डिफरेंस हो गया था, तो उसका प्रसंग कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको निपटाया। वो आप सीख लोगे ना तो बहुत काम में आएगा। हमेशा दोनों के बीच में हार्मनी थी, कभी मेरा तेरा नहीं होता था, हमेशा अपना ही रहता था, अपना ही, अपना, हमारा, मेरा नहीं लेकिन हमारा। यहाँ तो सब जब एक दूसरे पे डिफरेंस हो जाते हैं ना, फिर तब मेरा तेरा हो जाता है। मेरा नहीं, हमारा होना चाहिए हमेशा एक दूसरे के लिए। तो उनका हमेशा हमारा ही रहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी हीराबा के मैके में उनके भतीजे का शादी थी, भतीजे की वहाँ शादी थी। तो बा ने दादाजी को पूछा कि मेरे मैके में शादी आई है भतीजे के वहाँ, तो हम उनको क्या देंगे गिफ्ट में। तो दादाजी ने बताया, ऐसे ही सर बोल दिए उनको, कुछ कैलकुलेशन नहीं था, ऐसे ही बोल दिए, कुछ नया लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो कुछ चांदी के बर्तन पड़े हुए हैं उसको साफ करा के दे दो। तो बा का एकदम दिमाग आउट हो गया, क्या बात करते हो, आपके मामा के वहाँ जब कभी शादी होती है तो ये बड़े बड़े चांदी के ताट बना के देते हो, और मेरे मैके में जब शादी आई तो पुराने बर्तन इतने छोटे छोटे देने की बात करते हैं। तो दादाजी कहने लगे, मुझे एकदम मैं अलर्ट हो गया, ये पहली बार हमारी लाइफ में मेरा और तुम्हारा हो गया, मेरा तेरा हो गया, नहीं तो हमारा कभी ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने तुरंत समझ गए कि ये तो मेरी ही गलती है, ये नौबत आई ये मेरी गलती से आई है। तो कहने लगे, मैं तो तुरंत ही पलट गया, ऑन द स्पॉट पलट गया,
और कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये जो कुछ है बर्तन वो दो और ऊपर से कैश 500 रुपये दे दो। तो बाप बोलने लगे, ओह इतने सारे थोड़ी दिए जाते हैं। तो दादाजी कहने लगे तो फिर आपको जो ठीक लगे सो दो। कहते एक बार ऐसा मैंने ट्रिक करके मैं पलटी मार दी और बहुत बड़ा क्लेश नहीं होने दिया। नहीं तो उनके दिमाग में, उनके मन में कितना भाव बिगड़ जाता था, मेरा तेरा होता था। कहते जो करना से करो, मेरा तो सॉल्व हो गया। तो ऐसा हम भी कभी अपनी वाइफ की या वाइफ अपने हस्बैंड की साइकोलॉजी पकड़ के पलटी मारते जाओ। जितनी पलटी मारोगे ना उतना सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में अहंकार आ जाता है, मैं थोड़ी पलटी मारूँ, उसने मारना चाहिए, वो समझती क्यों नहीं है, मेरी बात तो सही है। अरे कोई भी बात सही है या गलत है ये हमारी समझ से, हमारे डिसीजन से नहीं कहा जा सकता है। सही बात कौन सी है? जिस बात से क्लेश ना हो, डिफरेंसेस ना हो, वही बात सही है। लाख आप कहेंगे मेरी सच्चाई मैंने आंखों से देखा है ऐसा, लेकिन जिस बात से क्लेश होता है, झगड़ा होता है, वो बात एकदम गलत है। तो उसको बाजू पे रख दो, कीप इट असाइड, इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। जिस बात से क्लेश होता है वो बात की कोई वैल्यू नहीं है। और जीवन में जो सच्चा और झूठा ये सब रिलेटिव सत्य है, रियल सत्य नहीं है। व्यू पॉइंट्स का है, अपने व्यू पॉइंट से जो दिखता है वही हम कहते हैं। सामने वाले को अपने व्यू पॉइंट से सच्चा दिखता है, हमको हमारे व्यू पॉइंट से सच्चा दिखता है। कोई गलत नहीं है अपने अपने व्यू पॉइंट से। आप उसके व्यू पॉइंट पर जाकर देखो तो आपको उसका सच्चा लगेगा। लेकिन हम हमारे व्यू पॉइंट्स में इतने स्टक हो जाते हैं कि उसके अलावा और कुछ नहीं देख पाते हैं और दूसरे के व्यू पॉइंट में जाकर देखने की तैयारी ही नहीं होती है। हमारा ही सच्चा है, उसकी वजह से ही सब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जिसको शांति प्रिय है उसके लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। सच्चा झूठा के लिए शांति रखो, बाकी सब छोड़ो। तो यही जीवन की बहुत कीमती चीज़ है, द पीस ऑफ माइंड। आपको सब कुछ मिल सकता है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर करना है तो करना है, क्योंकि हमारा जीवन में तो ये बहुत होता है, कभी कभी डिफरेंस होता है किस तरह से टैकल करना। यहाँ तक कि अपने भारत में तो कितना भी मतभेद हो लेकिन डिवोर्स तक नहीं जाते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी बात में डिवोर्स हो जाता है, और यहाँ अपने वहाँ डिवोर्स बोले तो सोच भी नहीं सकते हैं, एडजस्टमेंट लेते ही रहते हैं। ये लोग मानते हैं कि ये गलत है, अच्छा नहीं है, इसमें जीवन सुखी नहीं होता है। डिवोर्स लेके हम अच्छा दूसरा घर बसा दिए, दूसरा पति कर दिए तो क्या बुरा है। सारी ज़िंदगी इस तरह से दुखी होके जीना, उससे दूसरी इससे डिवोर्स लेके दूसरे से शादी करना क्या बुरा है। वो इसके लिए कुछ बॉटम लाइन होना चाहिए कि कौन से संयोग में आप डिवोर्स ले, बात बात में डिवोर्स ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉटम लाइन डिवोर्स की कौन सी हो सकती कि बहुत ही एक्सट्रीम पत्नी को दुख हो, पति या पत्नी दोनों मेंटली धरना से जो प्रेमित हो या ऐसा वैसा हो, थोड़ी वो उसकी बात आती है। या दारू पीता है, मारता है, काम धंधा नहीं करता है, पत्नी के पास कराता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, बेचारे की बेइज्जती करता है, इतना सब बहुत एक्सट्रीम केस रहा तो डिवोर्स नहीं ले, ऐसा नहीं कहते हैं 100% नहीं, लेकिन सर्टन केसेस ले सकते हो, नॉट बैड। लेकिन छोटी छोटी बातों में आप डिवोर्स ले लेंगे तो क्या फ़ायदा, फिर दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी। अपने को क्या कुछ कॉन्फिडेंस है, खातरी है कि दूसरी शादी करेंगे तो दूसरा हस्बैंड या दूसरी वाइफ पहले से अच्छा मिलेगा,
इससे भी बदतर आएगा तो क्या पता। जो था वो तो अपना पहचाना हुआ तो है, गला तो नहीं दबाता है, बाकी कुछ करता है। दूसरा आएगा तो गला भी दबा देगा, क्या करेगा क्या मालूम। वहाँ भी एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो फिर बच्चों के लिए क्यों ना एडजस्टमेंट इधर ही ले लो। यहाँ के लोगों को ये नहीं रहता, इतना डीप अटैचमेंट रहता है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए, इसलिए जल्दी डिवोर्स के नहीं सोचते हैं। वो एडजस्टमेंट लेके वर्कआउट करने का ही सोचते हैं, और मेजॉरिटी केस में वर्कआउट हो ही जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तभी ये डिवोर्स की बात होती है। आजकल डिवोर्स रेट बढ़ गया है, लेकिन नॉट एट दैट एक्सटेंट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वेस्टर्न पीपल में है। हमारा इतना नहीं है। हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम। एक बार हम फ्लोरिडा गए थे, 4-5 साल हो गए उसको। फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट हम उतरे, रात हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी। तो हमारा लगेज आने को देर हुई, रेस में एक बैग नहीं आई। तो फिर वो बैगेज क्लेम करने के लिए हमारे साथ एक पल था, वो गया, और हमको होस्ट एक डॉक्टर लेने आए थे, वो भी उसके साथ गए। हम अकेले खड़े थे वो बैगेज क्लेम के एरिया में। एक अमेरिकन आदमी था, शायद 45-50 साल की उम्र का था, वो भी अकेला खड़ा था। उसकी भी लड़की थी, उसकी भी बैग नहीं मिली, वो भी क्लेम करने गई थी लड़की। तो वो वहाँ खड़ा था, हम भी खड़ा था, जस्ट फॉर वेटिंग। काफ़ी देर हो गई, 10-15 मिनट हो गई होगी। तो हम तो शांति से अपने आत्मा में सब बेर क्या और क्या, कहाँ है कोई टाइम का तो कुछ बंधन लगता ही नहीं है, आत्मा में थे। लेकिन वो अभी अमेरिकन लोग तो इतना वेटिंग बोले तो उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो जाता है। यू कैन नॉट वेट। चला ऊपर नीचे होने लगा, ऐसा करने लगा, वैसा करने, उसको जो चैन नहीं पड़ा था। फिर टाइम पास करने के लिए हमारे साथ बातें करने लगा। पहले तो उसने हमको पूछा, वाई यू वेयर वाइट ड्रेस, नाइस ड्रेस, वाई यू वेयर दिस, क्योंकि हमारे साथ ऊपर था, उसने भी वाइट पहना था। फिर जो हमारा होस्ट लेने आया था वो भी वाइट पैजामा और कुर्ता पहन के आया था। तो उसको जरा आश्चर्य लगा। फिर हमने उसको समझाया, दिस इज होली रहता है, इसमें इसका पानी मन पे भी सब प्योर ऐसे इफेक्ट रहती है, हम सब होली पीपल है, ऐसा सब बताया उसको। फिर और एक क्वेश्चन उसने पूछा कि हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा कि आपके इंडियन लेडीज, व्हाई योर इंडियन लेडीज पुट अ रेड स्पॉट ओवर फोरहेड, वो कुंकू क्यों लगाती है ऐसा। तो फिर हमने उसको सब एक्सप्लेन किया कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो ये तो पहले बताया कि दो भ्रमर के बीच का जो सेंटर पॉइंट है फोरहेड का, वहाँ मन का स्थान है, सूक्ष्म मन वहाँ है, 2.5 इंचेस डीप इनसाइड। तो हमारे हिंदुस्तान में जो शादीशुदा स्त्रियाँ रहती है हमेशा यहाँ पर लाल तिलक लगाती हैं अपने पति के नाम पर, कि इस यहाँ उसको हमेशा याद करा रहता है ये तिलक कि मेरे पति के अलावा और कोई दूसरे पुरुष का विचार भी मुझे ना हो, इसीलिए वो यहाँ पर करती है तिलक। तो कहते ऐसा, उसको तो बहुत आश्चर्य लगा, सो ऐसा हो सकता है? हमको हो सकता नहीं, होता ही है। तो कहने लगी शायद मर गया हस्बैंड, तो हमने कहा मर गया तो भी तिलक नहीं लगाते, फिर भी मन में तो उसका ही थॉट रखती है। मरने के बाद भी दूसरे पुरुष के साथ शादी करने की या कोई व्यभिचार करने की कोई उसका थॉट में भी नहीं रहता है। मर गया तो भी उसके हस्बैंड का ही, एक ही हस्बैंड का थॉट उसके दिमाग में रहता है। वो कह रहा है वाह क्या बात है, हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। हमारे यहाँ तो अगर ऐसे तिलक लगाना रहा वाइफ को तो न जाने उसको कितने सारे तिलक लगाने पड़ते थे। अमेरिकन हमको बता रहा है। बेचारा कह रहा है कि आपका इतना ऊंचा कल्चर है, हमारी तो आपके इंडिया आके देखने की इच्छा है, हमको ज़रूर पधारो, बताएंगे आपको हमारा देखो कैसा है, इंडिया कैसा कल्चर है, स्त्रियाँ का कैसा रहता है।
फिर वो खुद ही बोलने लगा कि देखो ना, ये मेरी लड़की 19 ईयर्स, मुझे 3 बच्चे हैं और ये उम्र में मेरी वाइफ किसी और के साथ भाग गई है। बोलो अब मेरे कितने बेहाल हो गए, अभी ये उम्र में मैं कैसे निपटाऊँ, बच्चों को कैसा करूँ, किस तरह से करूँ। उसको विचार भी नहीं आया कि क्या होगा मेरा और मेरे बच्चों का। फिर हमने बताया हमारे वहाँ तो हस्बैंड वाइफ की सारी ज़िंदगी भर एक दूसरे से पटता नहीं है, बात बात में झगड़े होते हैं, तो भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों को अपने बाप या माँ से, माँ का प्रेम न वंचित हो जाए, इसलिए हमेशा सारी ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहते हैं, अपना सह लेते हैं जो भी कुछ है, लेकिन बच्चों को नहीं सहने देते, बच्चों के लिए भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर है। बहुत खुश हो गया, वो इतना बड़ा बहुत सेक्रीफाइस। हमारे इंडियन वुमन बोले तो रियली द ग्रेट। हमने कहा जी ग्रेट ही है, लेकिन हमारे इंडियन हस्बैंड को कोई पता नहीं है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। कभी एक दादाजी अपने लाइफ में, उनके 60 इयर्स की लाइफ में कहते थे कि हमारा हस्बैंड वाइफ में कभी एक ही बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, रैर किसी का। लेकिन उन्होंने मतभेद होने गया, लेकिन होने नहीं दिया उन्होंने, प्रैक्टिकली तो नहीं छुपे उनका लाइफ में। नो मतभेद, नो डिफरेंस ऑफ थॉट उनके लाइफ में नहीं था। इतना एडजस्टमेंट, उनकी दोनों की पर्सनालिटी एकदम एक्सट्रीम डिफरेंट थी। उनका एकदम टॉप मोस्ट हाई IQ, हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, और उनकी पत्नी सीधी सादी भोली बाली बिल्कुल अनपढ़, छोटे से इंडियन भारत के खेड़े की थी, और उसको घर का ही काम, घर में ही रहना अच्छा लगता है, कुछ बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं भली, मेरा घर भला, और जो भी कुछ है सब मेरा घर में ही है। इतना रिजर्व और बहुत शांत थे। कभी किसी के साथ, कभी ऊँचे साथ से भी उन्होंने बात नहीं की, सबके साथ प्रेम से ही बात करती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस था। और उनका तो बहुत हाई रिवॉल्यूशन आई थी, बहुत फर्स्ट क्लास था। तो भी उन्होंने इतने सारे एडजस्टमेंट ले लेके तो कभी डिफरेंसेस नहीं होने दिए। दैट वाज द ग्रेटेस्ट। हमको हमारे बहुत, हम भी तो कई सालों से आज पब्लिक रिलेशन में है, हर जगह पर जाते हैं, गाँव फिरते हैं, सबके साथ ज्ञान की बातें करते हैं, इवन पर्सनल प्रॉब्लम की भी बातें करते हैं। तो आज तक हमने भी देखा है कि डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कभी नहीं हुए, मतभेद नहीं हुए। ऐसे कपल हमको आज तक 2 मिले। एक ये विस्टन वाला कपल, हेमा और मुकेश पीछे बैठा है, और कल ही हमको मालूम पड़ा दूसरा कपल, अपना नानू भाई और जया भाई। वो कभी कभी लाइफ में ऊंचे आवाज़ से कभी बोले नहीं, हमको नहीं मालूम था। कल ही हमने ऐसा पूछा कभी आपका डिफरेंस हुआ, तो कहने लगे कि नहीं, हमारी 25 या 30 साल की शादी की, 30 साल की शादी की मैरिड लाइफ में हमारा डिफरेंस कभी नहीं हुआ है। धन्यवाद है, ऐसे भी कपल को धन्यवाद, नमस्कार करना चाहिए शादीशुदा लोगों ने। कितना डिफिकल्ट है डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस, बच्चों के बारे में, अपने बारे में, किसी छोटी छोटी बातों में भी कितना डिफरेंसेस होते हैं। अभी किसको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछिए। आज अपने पास टाइम में ज़्यादा बहुत टाइम नहीं है, 6:30 होंगे। Any questions? आपने अभी कहा ना जया बहन और नानू भाई के बारे में, तो मुझे कल वहाँ पर रहना था, तो मैंने देखा हमारे साथ उन्होंने बहुत बातें की। कल रात हम 1:30 बजे तक बात कर रहे थे, और दोनों की बात एक ही लय में आ रही थी। आप जो कह रहे थे तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। उनका
कोई ये बोले तो वो चुप हो जाते थे, ये बोलते तो वो चुप हो जाती थी, और दोनों की बात एक सरी की आती थी। उससे मुझे भी बहुत सीखने को मिला कि मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत भूल की है। फिर गुरु बना लो उनको गुरु बना ही दिया है। काम हो जाएगा, देख के ही सीखना मिलता है, बातें से नहीं सीखने मिलता है, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो सीखना मिलता है। ये भी यंग कपल इन दोनों का बिल्कुल धन्यवाद। उनके 10-15 साल हो गए होंगे शादी से। Never difference of thoughts. 20 years. 20 years. 20 years. 20 साल हो गए। उनके एग्जाम्पल में और भी उनके बच्चों के बारे में सुना, उनकी फैमिली के बारे में सुना। मैंने आज तक इंडिया में भी बहुत सारी फैमिली देखी है, यहाँ भी देखी है, लेकिन इनकी फैमिली देखकर ऐसा लगता है इतना कुछ उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनकी जो भावनाएं हैं बहुत ऊंची है। उनके बच्चे भी जो है धर्म में इतने लगे हुए हैं कि ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है। इनकी बातें सुनते हैं, उनके पिक्चर वगैरह, उनके बहुत कुछ मैंने बताया उनको, तो उनमें से पता चलता है कि वो गुजराती भी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, और धर्म में भी इतने, अगर उनके गुरुजी ने अगर उनको बुलाया तो ताबड़तोड़ जाके पहुंच जाते हैं। ये बढ़िया, यही धर्म का ही एक सहारा है जो हमको ऊंचे संस्कार में रखता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं।